Hello, Assalamualaikum everyone. So this is Nazia Khan, Head Corporate Communications, CEO Club Pakistan and Management House. And please welcome to our program, Coffee with CEO. And by the way, pata nahi kya baat hai, we guys are so lucky these days that this is the 4th consecutive program when we are having a young entrepreneur in our show. So please welcome Mr. Shahriyar Ahmed, who is CEO for AMS.PK. Thank you. How are you, Shahriyar? I'm good. How are you? About him, he's somebody who started this company when he was only 21 years old. Also, by the way, this is a security company and they deal with the niche security. Am I right, Shahriyar? Yeah, that's right. Yeah. So please, now let's talk to him and ask him how he made this far. So, how are you, Shahriyar? I'm good. How are you? Please tell us about AMS.PK. Arm Security Company was formed in 2012 when I got back from Canada. When you were 21. I was 21, yes. Yes. So I graduated from Canada and came back to Pakistan, bought this company from a retired colonel, and this company was closed. और ये गार्ड्स भी नहीं थे, कोई गार्ड नहीं था, सिर्फ कंपनी का नाम था, सिर्फ कंपनी का नाम था, सिर्फ वेपनरी थी, लाइसेंसेस थे, and that's about it. और इसको बिल्कुल स्क्रैच से मैंने एक बेबी की तरह शुरू किया. Why you came to the security side, man? Well, people do. There were so many other products available in the market where you can. There's a huge. This market is huge. Very true. Number two, I wanted people to work for me. तो वो तो आप कुछ भी लगाते नहीं, तो वो नहीं, ये एक ऐसा काम है जिसमें I basically wanted to go in Pakistan Army. Oh. And considering I'm the only son, so my father did not allow me to go in Pakistan Army. तो कोई सच्ची ख्वाहिश थी आप? मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई. Related to yes, the ex-army people. Yes. तो ये सारा करके तो I bought this company, I sold my car, और बस फिर I started it off. From Lahore. Tell us, so your company is in 8 cities now, mashallah. Yes, mashallah. Lahore, Gujranwala, Sheikhupura, Multan, Faisalabad, Kalar Kahar. Yeah. So, mashallah. So, what you have done in those years? क्या किया आपने ऐसा? कैसे expansion की? क्या मुश्किलें पेश आई? जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरे पास तो कुछ पैसे थे, तो मैंने H मार्केट DHA में एक अपना ऑफिस बनाया. ठीक है. मेरे ही गार्ड्स ने उसको फर्निश किया. अपने ही गार्ड्स ने फर्निश किया. मैंने कोई इंटीरियर डिजाइनर कोई किसी को नहीं बुलाया क्योंकि इट वाज जस्ट अ स्टार्टअप. ठीक है. उसके बाद मेरे जो करीबी फ्रेंड्स हैं और जानने वाले हैं, जो मेरी अपनी पर्सनल पीआर है, उसके लोगों ने जब ये देखा कि yes, now he's in the market, and he's into security. Yeah. Considering my father started off with scratch and then my Thai started off with scratch. Anju Mehmed, she's from Learning Alliance. Yes, I know. तो मेरा जो role models हैं दोनों वो हैं, my father and my Thai. So people started coming to you because not because of my. It's easier for them to trust you. नहीं, I did not use them because मैं अपने cousins को या मैं अपनी family को use नहीं किया इस तरीके से. मैंने पहले अपने दोस्तों से start किया, जो मेरे करीबी दोस्त थे. उन्होंने किसी की फैक्ट्री थी, किसी के घर में बंदे चाहिए थे, किसी को साथ चाहिए थे, तो SSG के कमांडोज उनको मैंने देना शुरू कर दिया. स्टार्टेड ऑफ विद नंबर 1. एक गार्ड था जो अलमास पे लगा था, आई स्टिल रिमेंबर, मुश्तबा खान. ठीक है, उससे मैंने काम शुरू किया था और बस फिर मुश्तबा खान, जिसका अब लामा है. Yes, I know Lama guy. तो I know the wife too. The both husband and wife. So I started working with him. He was my first client, and then my second client, जो मेरा बड़ा client था और अभी भी हैं, कामरान शेख नाम है उनका. इंटीरियर में उनका बहुत नाम है, फूड इंडस्ट्री में उनका बहुत नाम है. गन स्मोक उनका है, कैफे ज़ूक उन्होंने बनाया, वेरांडा बिस्ट्रो उन्होंने बनाया. अरे वाह. OPTPs उन्होंने बनाए. So मतलब you started dealing with the restaurant chains too. फिर मैं रेस्टोरेंट चेन्स में आ गया. मेरे सबसे बड़े क्लाइंट ही वो थे. Done. जब मैं रेस्टोरेंट्स के अंदर आ गया, उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि मुझे मॉडल्स नहीं चाहिए, मुझे सही वाले गार्ड चाहिए. खूबसूरत लोग नहीं चाहिए, खूबसूरत लोग, जानदार लोग. उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज सिखाई जो आप नीश की बात कर रही हैं, तो मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ. उन्होंने मुझे एक चीज़ ऐसी समझाई. उन्होंने कहा कि जब गार्ड तुम्हारा गेट के ऊपर खड़ा हो तो उसकी जो बियर्ड है वो तक बनी होनी चाहिए गंदी हालत में ना. ठीक है. अब दूसरी कंपनीज में और हमारी कंपनी में किधर फर्क आ जाता है, मैं अब आपको वो बताता हूँ. Owners running big enterprises, CEOs, 12,000 employees, security में तो आराम से आ जाते हैं क्योंकि टेंडर्स भरने हैं, बड़े टेंडर्स आपको मिल जाते हैं. वो आपकी सिर्फ कॉस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है. मैं वो काम नहीं करता. मैं स्पेशलाइज करता हूँ पाकिस्तान के एक्स रिटायर्ड
SSG कमांडोज में। Okay, come on. और बहुत कम कंपनीज हैं, गिनी चुनी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर हैं जो ये काम कर रही हैं, और हमारी कंपनी इज वन ऑफ दैम। Tell us about the niche clientele. What are the niche clientele when you're a security company? ये क्या बात हुई कि your company is specific to the niche people? क्या मतलब हुआ इसका? I want to focus on my guards. I want to focus on the clients. मेरा एम ये नहीं है कि मेरे 10,000 एम्प्लॉयज़ हों। मैं कहता हूँ मेरे 500 एम्प्लॉयज़ भी हों, लेकिन वो 500 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी में जाएं तो वो 10,000 प्लस देते हैं मुझे। जी, Okay. क्योंकि हमारी कंपनी का जो फोकस है। Who are these niche clients? Are they the celebrities, the corporate people? Okay, we have bureaucrats? Who are they? We have politicians. Okay, politicians. Great. हमसे सबसे बड़े हमारे पास जो इस टाइम है politicians हैं, फिर हमारे पास आते हैं schools. Oh. Schools को मैं You're giving security to the big schools yes, too. 2012 से मैं schools के साथ काम कर रहा और niche schools हैं. हूँ। niche, नामी ग्रामी schools हैं, grammar है, ग्रामर स्कूल है आपका, लाहौर ग्रामर स्कूल, उसको मैं दे रहा हूँ। फिर मैं बीकन फैसलाबाद से मैंने शुरू किया था, फिर मैं लाहौर में भी आ गया, फिर मैं बीकन हाउस के साथ काम करना शुरू कर दिया। सो क्लाइंटेज मेरी जो है, मेरी क्लाइंटेज schools हो गए, फैक्ट्री पॉलिटिशियंस हैं, देन फैक्ट्री ओनर्स हैं, फिर पर्सनल प्रोटेक्शन में CEOs हैं बड़ी कंपनीज के, जिनको मैं देता हूँ। जी। So where do you see your company 5 years down the road? This is a very interesting question. Well, people do ask me where do I see myself after 5 years. My only focus is not multiplying the guards. I want to give them the best to the best facilities that any security company could give them. So how do you make sure that this mission and vision is transferred down the lane? आपका गार्ड भी यही सोचे कि नहीं मैंने क्वालिटी देनी है, आपके बाकी वर्कर्स जो हमारा गार्ड, how do you do that? हमारा गार्ड अगर क्वालिटी नहीं देता, हमारी टीम की हर वक्त उनके ऊपर नजर होती है। अगर वो थोड़ी सी भी उनमें अगर वो प्रोफेशनली काम नहीं करते, we give them a notice and we change the guard. So how do you groom them? So you said कि वो we have a team. Okay. Before we plant the guards to the locations, वो fully groomed जाते हैं with their uniforms और extra uniforms I would rather say, क्योंकि security companies जो है वो एक यूनिफॉर्म ही देती हैं, हम एक नहीं देते। We give them, हम 4 uniforms देते हैं। मतलब you take interest in the tiny details as well, yes. ना? क्योंकि देखिए ना, आपका जो client है, if he is paying you good end of the day, you have to take care of your guard, ताकि उधर से आपको कंप्लेन किसी किस्म की ना, क्योंकि he is the one earning for you end of the day. So you did this thing because you wanted to be in army ना? Yeah. फिर आपने अपने ख्वाब पूरे किए। अब आप मुझे ये बताइए कि where do you see कि आप इसमें मजीद extensions और क्या लेंगे? क्वालिटी तो आप लेके आएंगे, क्या इसके अलावा नीश मार्केट आपने कर ली, 6-7 सिटीज आपने देख ली है, what's further there with arms.pk? Arms is getting registered in UAE, inshallah. Great. And so it's going global. Yes. Good. And furthermore, हमने जो हमारा जो विजन है, जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, वो ये है कि हमने सिर्फ सेलिब्रिटीज को ही UAE में हमने सिर्फ फोकस करना है। और हम उधर UAE के अंदर we will take our commandos from Pakistan, and if they are, अगर कोई आपकी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो पाकिस्तान के ex SSG कमांडोज नहीं चाहते, तो हम उनको साउथ अफ्रीकन देंगे, जिसके साथ द हैप्पी, कोई किसी किस्म की उनको लैंग्वेज बैरियर ना हो। By the way, हम लोग पाकिस्तानीज are known for this ना, अभी हम लोग FIFA वर्ल्ड कप में भी तो दे रहे हैं अपनी सिक्योरिटी, so that means we are known as the best ones there in the globe, across the globe. Pakistan's commandos, ex SSG commandos are the best in the world. They are top rated. Musharraf Saab, General Musharraf was number 7th, is still number 7th in the world. Thank you for telling that. Okay, now you tell me, what do you think are the 3 competencies a leader should have? One should be, number 1, he should be focused. Focused, जो आप शुरू से थे। किसी CEO को भी जरूरत है कि वो focused रहे अपने काम की तरफ। Distractions कैसे निकालेगा? Distractions, उसको जब distractions आएंगी, सबसे पहले उसका और उसके एम्प्लॉय के बीच में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। Number 1 is focus. Number 2 is हमारे जो पाकिस्तान के CEOs हैं, उनका बेसिक मोटो होता है to earn money, make money. किसी भी business is known by numbers, किसी भी yes, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं था। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि पहले मैंने अपनी कंपनी को, या कोई भी CEO हो, मैं उसको यही हमेशा एक बात कहूंगा कि पहले अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश इस तरीके से करो that you come
in the eyes of the people. Your motto should not be making money. So my motto was never making money. It's giving the quality. Yeah. End of the day, you have to provide them with the quality. People will eventually walk up to you. And number third, unemployment को खत्म करना है. Great. जिस तरह भी कर सके. So it's like focus, and then not eliminating unemployment. Yes. And number 3 is non-profitability. कहना मुश्किल है लेकिन yes. So now tell me, what do you think about leadership? Shahryar, लीडर बन गए आप. 10-12 साल पहले आपने काम शुरू किया था. Now you are having good number of employees in 8 cities. What do you think leadership is? Leadership is taking your staff, your team. It is basically the team that is, like I said, the team is earning for you. You are just telling them what needs to be done. सबको साथ लेके चलें. That is very important. जब तक आप सबको साथ नहीं लेके जाएंगे, कभी भी आप एक अच्छे CEO नहीं बन सकते. How Shahryar wants to improve as a leader? ऐसी कौन सी चीज़ है where you think that you need an improvement? I think end of the day I get very emotional when something happens to my guard. So you have to balance this thing within yourself now. Security company बनाना बहुत आसान है, उसको चलाना उतना ही मुश्किल है. अब तो बड़े साल हो गए आपको चलाते हुए. जब आप कोई आपका गार्ड फौत होता है या उसको कभी हिट हो जाता है, तब आपको पता चलता है कि सिक्योरिटी कंपनी क्या है. दूर से इट लुक्स वेरी नाइस, एवरीथिंग इज वेरी. Tell us some story जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो या हिट किया हो, कुछ ऐसा. प्लस भी बता सकते हैं, माइनस भी बता सकते हैं. Do you want to know a story about my guard or yes, by whatever you want? Yes. Or any celebrity, whatever. Being in the industry, जो आपको लगा कि मुझे जहाँ पे दुख पहुँचता है उस चीज़ का पहुँचता है कि we as a CEO, जब मैं अगर एक CEO के साथ मिल रहा हूँ तो मैं उसको I am giving him the best that we can offer. Done. Unprofessionalism is not allowed किसी भी प्रोफेशन के अंदर. जब आपके गार्ड्स, अच्छा ये बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है, जब उनको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वो कहते हैं if I'm paying him 40,000, why don't I pay him 20,000, get this guy myself. That's very common. This is very common. Very common. पाकिस्तानी mindset. ये चीज़ है जो मुझे दुख पहुंचाती है. Unprofessionalism नहीं बर्दाश्त. दूसरी साइड के ऊपर गार्ड्स की साइड पे अगर आए तो मैंने 50-50 हज़ार बंदे का इवेंट भी किया हुआ है, कैंट के अंदर रह कर किया हुआ है. तो मेरे बंदों को शॉट्स भी लगी हैं, दे हैव डाइड, और उनके घर तक भी मैं गया हूँ बॉडीज लेके. हार्ट अटैक्स भी हो जाते हैं, बॉडीज उनको भी लेके जाना पड़ता है. तो ये तो एक सैड पार्ट है कि एवरीबडी हैज़ टू गो एंड ऑफ द डे. और पीपल वर्किंग फॉर मी, दे आर इंश्योर्ड. ठीक है, उनकी फैमिलीज को हम सपोर्ट करते हैं टिल द एंड जब तक हम कर सकते हैं, लेकिन लूजिंग अ लाइफ and picking up the body is very difficult. Yeah. Now you are making me sad too. Tell us about your industry in general. Why for? Because there's so many security companies in the market. तो क्या चक्कर है? क्या security company बनाना आसान है? Security company बनाना बिल्कुल आसान नहीं है. पहले बहुत आसान था. There were 700 plus companies in 2015. I know. अब 2022 they are left with 250 plus. So many are gone. Yes, licenses cancel हो गए. People, सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस जब किसी को मिल जाता है, दे थिंक दे आर अ माफिया. ये तो आई रियली लव द स्टेटमेंट व्हिच यू सेड, माफिया. माफिया है, वो कहते हैं हम के कब्जा डोमिनेंट हो गए. हमें कॉल्स भी आती हैं, वो कहते हैं कि जी आप हमारी जगह को छुड़वा दें. क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, लेकिन हम ये काम कर नहीं सकते. वी आर नॉट अलाउड टू डू दिस. तो बेसिक जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि हमने प्रेमिसेस को, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, कब्जे नहीं छुड़वाने. But that was very tough for you. I mean, you're very young too, but you're dealing with a minute back you told about the dead bodies and stuff, and this mafia as well. So it's a very hard industry to work. Very very hard industry. Like I said कि दूर से बहुत ग्लिटरी लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि they have 10,000 employees, 5,000 employees. लेकिन ये उतना ही मुश्किल है when you get deep. So how many times during all these years आपने सोचा कि मैं छोड़ दूँगी? मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची. क्यों? What kept you moving? क्योंकि I'm a very focused CEO. The day one when I started it off, तो मैंने ये कहा था कि मैंने करके छोड़ दिया. कर तो आपने लिया था, बट मुश्किलें कभी बहुत ज़्यादा आती हैं. मैंने आपको बताया कि मेरे पास कभी पैसे नहीं होते थे. मेरे पास पैसे. You are telling the real pain points ना. मेरे पास कभी पैसे भी नहीं होते थे. अब तो चलें ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह माय कंपनी इज डूइंग वेरी वेल. लेकिन बैक इन द डेज जब मेरे पास शुरू किया था जब मेरे पास 15-20 गार्ड थे, तो उनकी तनख्वाहें भी मेरे से पूरी नहीं होती थी.
क्योंकि मेरे अपने एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। बंदे मेरी लेबर थी जो मेरी कंपनी के अंदर काम कर रही है, फिर उसके रेंटल्स होते थे, उसके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स होते थे, बट ये इवेंचुअली पे ऑफ कर जाता है व्हेन यू वर्क हार्ड। गोइंग इंटरनेशनल का ख्वाब आपने कब से देखना शुरू किया? 2017. There are only 3 security companies in UAE right now. Oh, so there's a huge potential over there. But so मतलब why UAE only? Because वहाँ पे potential ज़्यादा है? Potential ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा potential है। ठीक है। लैंग्वेज, मैंने आपको कहा है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है। दूसरा अंग्रेजी is easy and then Arabic is also easy. प्लस उर्दू भी बोली जाती है। पाकिस्तान के बहुत ज्यादा जो यहाँ से लोग हैं, लेबर है, वो वहाँ पर जा रही है ऑलरेडी जी। तो वो अगर मैं यहाँ से काम स्टार्ट करता हूँ तो मेरी लेबर के लिए it's going to get very easy to settle down. इंशाल्लाह। wish AMS.PK to be global in next 5 years. अच्छा, okay, now you tell me some short questions. So इतना मुश्किल काम, dealing with so much stress handle कैसे करते हैं? स्ट्रेस हैंडल निकालते हैं, कोई बंदे चलने तो नहीं ना? नहीं, बंदे तो नहीं, बंदों को तो हम कुछ नहीं कर सकते ऑब्वियसली, लेकिन गुस्सा, एक लीडर का काम है कि अपने गुस्से को पीना, अपने आप को ठंडा रखना, और जितना आप अपने आप को ठंडा रखेंगे आई थिंक उतना ही आप एक्सेल करेंगे। पहले भी ऐसे थे या आप ऐसे हो गए? अब ऐसा हो गया, पहले बहुत गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा था, इतना था कि मेरे घर वाले भी मुझे ये बात करते थे कि ये एक बारूद है, कभी भी फट जाएगा। सिक्योरिटी कंपनी, और सिक्योरिटी कंपनी से पहले मैं शायद कुछ लड़कों के अंदर से था जिसके पास, अब तो एवरी किड हैज गार्ड्स बिहाइंड देम। I was probably one of the few जिसके पास SSG के गार्ड्स थे, 6 गार्ड थे, और 2 उनमें से 6 गार्ड्स फॉर अ यंग बॉय। I was 20, उस टाइम I was 21. 2021. Oh, and you wanted that feel to be with everyone. आपने सबको गार्ड देना। I have enjoyed, alhamdulillah, I have enjoyed every moment of my life. Even till date I'm enjoying. हाँ। लेकिन मैं जो 6 गार्ड्स थे वो किसी के पास नहीं थे जो मेरे पास थे। वाह भाई वाह। और अब आप वो सारे गार्ड सबको प्रोवाइड करते हैं? अब मैं सबको प्रोवाइड करता हूँ। You wanted the rest of them to enjoy that luxury, ना? जो मेरा राइट हैंड था, जो मेरा गार्ड था, he was gunman to प्रेसिडेंट मुशर्रफ। तो जो मैंने स्टार्ट किया था काम, तो मैंने उस बंदे से स्टार्ट किया था। एंड द सेकंड वन, ही वाज शॉट इन मिरान शाह इन एन ऑपरेशन, ही वाज ऑन द फ्लोर फॉर 8 आवर्स, बच गया था, लेकिन वो उसकी नट शेल जो है, वो उसकी शेल जो है ऑफ द बुलेट इज स्टिल देयर, ही कैन नॉट स्पीक प्रॉपर्ली। वो बंदा अदरवाइज ही इज हाँ, ही इज फाइन, ही इज अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज फाइन। तो मेरे पास ऐसे बंदे काम कर चुके हैं। आई कांट सी द, जैसे आपका रूटीन नजर आ रहा है, एंड हार्ड वर्क व्हिच यू आर गोइंग थ्रू, वर्क लाइफ बैलेंस तो नहीं होता होगा? घर वाले तो शिकायत करते होंगे। घर वाले हर वक्त शिकायत करते हैं। देखा, सी घर वाले तो व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू दैट वर्क लाइफ बैलेंस? इन अदर 10-12 इयर्स मैंने उनको बड़ी क्लियर बात कर दी है कि दिस इज द टाइम, मेरा यही टाइम है कि मैं अभी काम कर लूं। 40 साल के बाद शायद आई वुड टेक अ स्टेप बैक। डिस्ट्रैक्शंस आती हैं बहुत ज्यादा। कैसे खुद को परसिस्टेंट रखते हैं? क्लाइंट्स ही जान नहीं छोड़ते। I know your clients are your distractions too. Obviously बात, उनको नहीं खुश रखेंगे तो काम किस तरह करेंगे? फिर क्या करेंगे? What is success to you, Shehryar? Success to me is कि when I walk somewhere and I see my guards there, and मुझे सबसे बड़ी सक्सेस इस चीज की फील होती है कि सीईओ को, किसी भी अच्छी सीईओ को गार्ड्स दे दिए, वो मेरे लिए सक्सेस नहीं है। फिर क्या सक्सेस है? किसी की प्रेमिसेस में जाता हूँ, आधे से ज्यादा मालिक तो मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ पे गार्ड्स खड़े Whatever I say, with the blink of my eye, they'll be gone. I mean, it's just the blink of the eye. सारे गार्ड्स आपको जानते होते हैं? नहीं। I'll tell you a very funny story. Okay. I was 23 years old. Started working with Lahore Grammar School, Faisalabad. उनको मैंने दिए about started all the girls, young boy. I gave them 22 guards. एक दिन रात को प्लान बना कि लेट्स गो फॉर अ विजिट, तो मैं अपनी शॉर्ट्स में अब ट्रेनर्स पहन के, पी कैप पहन के मैं चला गया। तो जब मैंने नॉक किया, मैंने कहा, क्योंकि आई वाज अ फ्रेशी, तो मेरे लिए ये था कि मैं अपनी लोकेशंस को आज भी विजिट करता हूँ, लेकिन तब मैं ज्यादा करता था। तो उसने, मैंने नॉक किया तो वो गार्ड बाहर आया, उसने कहा जी आप कौन है? मैंने कहा जी मैं अंदर आना चाहता हूँ आपके स्कूल के। उन्होंने कहा जी आप अलाउड नहीं है इस टाइम, सुबह आए। मैंने कहा जी मेरा नाम शहरयार अहमद है। तो उसने मेरी शक्ल देखी ऊपर से लेके नीचे तक के थे, आप हैं शहरयार अहमद। तो मेरे लिए वो
sort of like negativity or not accepting वाला behavior because you were गार्ड से भी थ्रेट्स आती रही, गार्ड से भी थ्रेट्स आती रही. guards? यस, Guards say? देखिए ना, वन सिविलियन handling a yes. security company, Oh, it's not acceptable. a guy who graduated from Canada came and sat on a seat. And no जहाँ पे- experience of army? No experience. Though my mother's side, I have my mamus. They were in Pakistan Army. लेकिन मेरा अपना personal Hands-on तो experience नहीं है। नहीं, मेरा personal experience नहीं था. तो threats तो आती हैं, थी या है? अभी भी आती हैं. अभी भी उनके लिए आप छोटे ही हैं, नहीं, उम्र भाई। अब threats गार्ड से नहीं आती. What do you mean? अब threats आती हैं. अब threats वो वाली threats नहीं है कि दिल किल में, वो वाली threats नहीं है. अब threats हैं कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर जब किसी एक कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो he cannot see a CEO who is a civilian CEO working for a firm. ठीक है, तो वो उनको एक चीज, एक बहुत बड़ा हर्डल है जो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते. वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हैं शहरयार? वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह करता हूँ? My work hours are about 12 hours a day. Daily? Daily. Oh, okay. Even Sundays, even on the days of Eid. Festivity too. Yes. कोई छुट्टी नहीं है. और 2 hours to 3 hours to my family. Daily. Okay. इसके अलावा मतलब कोई दोस्त शोस्त तो नहीं है ना? नहीं, मेरी एक बहुत अच्छी और एक बहुत बहुत वास्ट पीआर सर्कल है. Done. लेकिन वो पीआर जो है सिर्फ वीकेंड्स के ऊपर या एक दिन है वीक के अंदर जिसके आए जिसको भी. मतलब you try to balance your Yeah, work. I have to balance. Family and Yeah. then friends too. Yeah, And your I have- circle. yeah. Okay. Now you tell me what is success to Shahryar? बहुत छोटी उम्र में आपने बहुत कुछ जी. देख लिया था, but then आपने अपना सेटअप किया. जी. अब after 10-12 years, what is success to you? Success is building your empire from zero and keep Scratch. from scratch and just let it go wherever it's going. Just go with the flow. Just don't force it. जितना आप उस चीज को फोर्स करेंगे ये भी हो सकता है कि आपका एम्पायर जो है वो कोलैप्स कर जाए. Just go with the flow. What is happiness to Shahryar? Sorry, What is happiness to Shahryar? my family. Oh, okay. Yeah. So this means that you are working hard to do that work-life balance. मेरी अपनी कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट नहीं है. मेरी जो कुछ भी whatever I'm doing it for my family. Your message of hope and optimism for youth. You are youth, so you need to inspire them. I would tell youth just one thing: come out, work. Just do not think that you cannot do it. Everybody can do anything and everything. Impossible itself says I'm possible. Just do not ever get shattered. Okay, you have lost it.